नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द शो। आज हमारी गेस्ट हैं रुचि चावला, जो एक बहुत बड़ी इंडियन ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के साथ डिज़ाइन मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं। वेलकम रुचि। थैंक यू सो मच रीना। रुचि, women and jewelry are two connectors, or I must say synonymous of each other ना। जहाँ ज्वेलरी है वहाँ वुमन है, जहाँ वुमन है वहाँ ज्वेलरी है। Absolutely. और इन दिनों हम देखते हैं कि ना सिर्फ रियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का जैसे एक रेवोल्यूशन आया हुआ है। तो रुचि, वेलकम टू द शो। Thank you so much. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। और सबसे My पहले तो pleasure मैं to meet you and speak Same. about my brand and Same. myself and how I came into this field. I was Yeah. very passionate about. मेरा शुरू से ही I was very much interested into drawings and paintings. Though I belong to a very little conservative Punjabi family, career was not the first thought for my parents, but my mom supported me. Actually, she supported me till the time I wanted to pursue my course. I wanted to do not only जैसे आप classes में drawing painting करते हो, like class 3rd 4th 5th से जब मुझे interest आना शुरू हुआ about real paintings, portraits वगैरह का. So, but my mom said she knew that how the I have lived with a family of with 50 people. Like it was a really? big Punjabi big joint family. Okay. So, तो she was very afraid in speaking to others also कि मैं कैसे allow करूँ बाहर पढ़ने जाने के लिए for something which is like लोगों ने सुना ही नहीं। मेरा design was not the first career choice. Yeah. And I'm from Allahabad, Okay. known as Prayagraj now. So Allahabad में if you see career choices are mostly into IAS and PCS and then engineering and as doctors. usual, for So everyone. that was not my first choice and being seeing together कि ये choice भी नहीं है and then family is also not very open to careers like Comfortable this. with this, So my mom said कि okay, I'll talk to my grandparents or my father about that, तुम्हें सिर्फ कोर्स करना है। तो the story was still कि मैं रो धो के मैंने किसी तरह I wanted to कि मैं बस कोर्स कर लूँ। Actually that time even working to do make a career into design was not into my mind also, frankly speaking. I just wanted to do something because I was hearing from some of my friends कि they are doing engineering, they are doing this, that, MBA, but मुझे वो नहीं करना था. I wanted to study more. So फिर design was somehow my first choice. So my mom convinced everyone कि चलो at least you finish your course. फिर we'll see things later on. तो उसके बाद रुचि कैसे शुरू हुई जर्नी, ये तो आपने बताया मुझे। अभी थोड़ा सा हमें ये बताइए कि तनिष्क तक आप कैसे पहुंचे। क्या पहला जॉब तनिष्क में ही था आपका? नहीं, पहला जॉब वाज लाइक so then when I was finishing my course, then I was very tempted to work कि अब मैंने कोर्स कर लिया है डिज़ाइन का and luckily मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। that was my first company called Ganjam Nagappa. It is a Bangalore based company. The stores are in Bangalore only. I think one store they have in Taj, New Delhi also. A small boutique sort of. It's a nice company but not very big in terms of turnover. So वो मेरा first job था and then because I learned design plus gemology, मैंने gemstones की study भी सीखी है, gemstones plus diamond testing. It was a full-fledged course. तो फिर हमें जब मेरा जॉब लगा, इनिशियली आई वाज डूइंग डिज़ाइन बट वहाँ पे दे वर गिविंग मी मोर ऑफ डायमंड टेस्टिंग एंड जेमस्टोन टेस्टिंग बिकॉज उस समय बाई चांस की बात है कि जब मैंने ज्वाइन किया था दैट टाइम पीपल हु कैन एक्चुअली टेस्ट डायमंड्स वर वेरी फ्यू इन द कंपनी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो मेरे को लग रहा था कि मेरे को तो इंटरेस्ट डिज़ाइन में है एंड एवरी डे व्हेन आई कम टू ऑफिस एट 9 आई वाज डूइंग सम पार्ट ऑफ डिज़ाइन एंड द लेटर पार्ट ऑफ माई डे गोज इन टू टेस्टिंग विच वॉज नॉट माई फर्स्ट चॉइस. आई न्यू बट एक करियर के परस्पेक्टिव से आई वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड एंड इट इज़ अ वेरी टायरिंग जॉब. सो आई वॉज लाइक कि अब क्या करूँ, मुझे घर वापस नहीं जाना बिकॉज आई वॉज टेम्पटेड टू वर्क एंड दैट टाइम आई वॉज डेटिंग माई हस्बैंड ऑल्सो एंड ही वॉज स्टडीइंग. सो मुझे लगा था घर जाऊँगी तो शादी हो जाएगी, बस दैट वॉज द ओनली चॉइस. तो आई वॉज सर्चिंग फॉर कंपनीज एंड माई पेरेंट्स एंड
when I got through this company called Ganjam, I also got the confirmation from 4 other companies, but they were all Bombay based. But because Okay. majorly jewelry hub is Bombay, जहाँ पे सारा manufacturing का काम होता है, known people को Bombay ही पता है. Slowly, steadily, I got to know if Calcutta is also one hub place, Ahmedabad is also there. But diamond, big diamond jewelry and even export import जितना भी होता है, because diamond Bombay is the hub. But my father was not convinced with Bombay. He was like sitting in Allahabad and thinking about Bombay. No. So then I researched a lot कि Bangalore based companies कौन सी हैं. So then I got to know कि Tanishq का head office is in Bangalore. So without telling my parents, I just took the number from somewhere, from website and all, and I spoke to the HR that I want to interview for a design a person, and I'm working because Ganjam जो मेरी फर्स्ट कंपनी है उसका बहुत नाम है साउथ में. मतलब इट इज़ वेरी नोन, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, फॉर इट डायमंड प्रोडक्ट. मतलब वी यूज टू डू, दे वर टीचिंग मी क्वालिटी कंट्रोल ऑल्सो. सो वन प्रोडक्ट इन गंजम टेक्स 24 hours टू इवन क्वालिटी चेक. तो देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई. सो आई न्यू कि अगर HR को पता चलेगा कि आई एम फ्रॉम गंजम, सो एटलीस्ट मेरा इंटरव्यू सेट हो जाएगा. सो देन शी कॉल्ड मी, मेरी डिज़ाइन हेड थी उस समय, अभी तो शी इज़ नॉट देयर. सो शी अग्रीड कि उनको बाई चांस की बात है, उनको एक डिज़ाइनर चाहिए भी था एट माई लेवल, जूनियर लेवल. So then I interviewed. She really liked my portfolio and my interview went very well. And then I joined Tanishq. Basically, you did jewelry designing. Jewelry designing, production learning, Okay. gemstone learning, and diamond These are the learning. certification, They were part of that course only. So then they were not looking because Tanishq is very big. The diamond sorting and color stone testing departments are different. So I interviewed only for the design department because I was more interested in design. Okay. So then when I joined Tanishq, I joined Tanishq on 25th of November 2005. As a because they said कि अभी गंजम में इतना टाइम नहीं हुआ था, because गंजम I started in 1st March 2005. So it was only 7-8 months के बाद I changed. So Tanishq में I worked as a retainer for about a year. A retainer is like as a consultant because they wanted to test. They were very specific about design. So at that time Tanishq was also very little, very small company growing up. So they wanted to be very specific कि जो शुरुआत के लोग हैं, those have to be very firm because उनके साथ ही हम new teams develop करेंगे. Right. So for a year I was as a consultant there, and then they liked my work, so they confirmed me. तो रुचि, टेल मी द प्रोसेस. जब आप कोई नया कलेक्शन लॉन्च करती है तनिष्क या कोई भी ब्रांड, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? एक्चुअली जैसे अभी अगर हमारा देखा जाए कि दिवाली अभी आने वाली है, मार्च अभी आएगी नवंबर में, तो उसका प्रोसेस स्टार्ट्स दिस नवंबर ओनली, एटलीस्ट अ ईयर बैक. और इंडिया में तो फेस्टिविटीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट डेज जब आप लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ और दिवाली, इससे पहले तो बहुत सारी तैयारी होती होगी सभी ब्रांड्स की. हाँ, आई थिंक तो जो प्रोसेस है किसी भी चीज़ का, लाइक देयर आर सर्टेन managers who take care of certain projects. Like I take care mostly of wedding jewelry, Riva जो हमारा brand है. There are, so इसीलिए different managers है because सबको research करने के लिए बहुत time चाहिए होता है, because you need newness in terms of techniques, in terms of gemstones, in terms of what is your competitor is doing, you don't want to repeat. And at least जो इंडिया में नहीं भी हो रहा है, there are certain things which इंडिया में नहीं हो रहे, but people are so fascinated with what is happening outside, we want to tone down and bring it to the Indian market, because there are certain specification कि आप वही इंडिया में अगर लोग mostly heavy jewelry sarees and इंडियन वेयर के साथ पहन रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो फैसिनेटेड कि बाहर कार्टियर क्या कर रहा है. सो वी हैव टू लाइक फ्यूज इन, वी गो एंड विजिट डिफरेंट फेयर्स. इटली के फेयर्स हैं, स्विट्जरलैंड के फेयर्स हैं, वी गो अराउंड कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी, लाइक जर्मन फेयर्स हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी, व्हाट इज न्यू मशीनरी क्या बन रही है ज्वेलरी में, पीपल आर लाइकिंग लाइट वेट ज्वेलरी. सो अभी मेरा ये सवाल बीच में, रुचि के जैसे मैं पहले देखती हूँ, हमारे यहाँ हमेशा से एक फैसिनेशन रहा है रियल गोल्ड का. लाइक पहले जब हम लोग छोटे होते थे तब तो मैं सुनती थी कि 24 कैरेट में ही, कि जी बिल्कुल प्योर.
अभी आया बाद में कि 22 कैरेट में ज्वेलरी बनने लगी, लेकिन बाहर हमेशा से हम लोग सुनते थे 14 कैरेट। और अब ये ट्रेंड आई एम ऑब्जर्विंग इंडिया में बहुत ज्यादा आ गया। 18 कैरेट ज्वेलरी बहुत ज्यादा बन रही है, 14 कैरेट भी बन रही है इवन। तो ये चीज तनिष्क भी फॉलो कर रहा है। 18 कैरेट तो डायमंड में बनेगी ही बनेगी, लेकिन मैंने अभी बहुत सारे कुछ दिनों पहले सर्च किया तो देखा कि 14 कैरेट में काफी ब्रांड्स बना रहे हैं ज्वेलरी। हमारे तनिष्क इज आल्सो मेकिंग मिया में, Okay. बिकॉज दैट इज अ नीड ऑफ एन आवर। आपको लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए। अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, अभी उसने काम करना शुरू करा है, बट शी वांट टू बाय सर्टेन स्मॉल इयररिंग अपने लिए, जस्ट कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई, बट शी डोंट वांट टू स्पेंड टू मच। तो वो आपका कैरेटेज लो भी हो गया, आपका सर्टेन प्राइस मनी में भी आ गया, एंड इट इज प्रेशियस। समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 9 कैरेट में है, 14 कैरेट में, बट दैट इज प्रेशियस ज्वेलरी। हाँ, मैं ये चाहती हूँ रुचि कि आप एक बार ऑडियंस को ये भी बताएं कि ये एक मिथ है बहुत लोगों के दिमाग में कि इसका रीसेल वैल्यू नहीं है या कुछ नहीं मिलता वापस अगर आप कम कैरेटेज वाला। नहीं, वो कोई पर प्रेशियस तो होता है एक्चुअली। 14 कैरेट भी अगर उसमें गोल्ड है तो वो आपको उतना तो मिलेगा अगर आप उसको रिटर्न करते हैं। आपका कैरेटेज लो है, कैरेटेज लो है, लेकिन वो आपके प्रेशियस सेगमेंट में ही आएगा। सो वो बाहर से इसलिए ट्रेंड आया क्योंकि बाहर ना एक्सचेंज करने की बहुत ट्रेंड है। लाइक पीपल, आप प्रेशियस ज्वेलरी में भी ऐसा कर सकते हैं कि एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है, आपने खरीदा, आपने फंक्शंस में पहन लिया और आप जाके रिटर्न करके आ गए, विच इज नॉट देयर इन इंडिया इतना। नहीं, वैसे भी इंटरनेशनल कस्टमर पॉलिसीज आर वेरी कस्टमर फ्रेंडली। हाँ, इंडिया में नहीं है वो है ट्रेंड। तो लेकिन इसलिए क्योंकि बाहर इतना होता है तो लोग बाहर से क्यों खरीदे, अपने खुद के ब्रांड से खरीदे। एंड इसीलिए कि अगर आपको लाइट वेट चाहिए, लेकिन आपको, क्योंकि अभी गोल्ड वेट इज बिकमिंग टू मच, तो अगर आपको एक छोटे कैरेटेज में ज्वेलरी मिल रही है विच इज मतलब अभी तो आपका क्या हो गया कि इमिटेशन ज्वेलरी हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। Really? तो आपका वो उसका जो बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम हो गया। आप 9 कैरेट की ज्वेलरी खरीदो या आप प्रेशियस जिसका कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं है वो खरीदो, तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम 9 कैरेट और 14 कैरेट की खरीद लेते हैं। कल को हम अगर सेल भी करने जाएंगे तो एटलीस्ट वील गेट समथिंग। या डेफिनेटली दीस आर ऑल प्रेशियस सेगमेंट्स। इसमें पूरा गोल्ड ज्वेलरी आप देखिए 20 के 15 के तक के सेट्स आप देख रहे हैं, और उतने में ही आपको प्रेशियस ज्वेलरी मिल जाती है 9 to 14। मे बी द वॉल्यूम इज नॉट सो मच, बट एटलीस्ट आप अगर उसको it's an asset to you obviously। so थोड़ा थोड़ा करके एग्जैक्टली आप अगर छोटे छोटे बहुत सारे ले लिए और कल को आपको नहीं काम आए, आपके बच्चों ने भी नहीं, यू कैन कंबाइन इट एंड गो टू द सेम ब्रांड एंड एक्सचेंज एंड बाय समथिंग बिगर। इट गेट्स गुड अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट आपको और तनिष्क जैसी ब्रांड्स तो क्योंकि बहुत रिलायबल हैं, नो डाउट। और फिर रिलायबिलिटी की बात ये भी है कि जब आप, क्योंकि मैंने जब देखती हूँ मैं पुराने अगर हम कुछ एक्सचेंज करते तो उनके पास तो सिस्टम में सारा रहता है, अगर आपने सेम ब्रांड से लिया हो तो एवरीथिंग इज नोटेड कि आपने तब लिया, इतने का लिया, आज आपको ये वैल्यू, तो ये चीज बहुत अच्छी है, रिलायबिलिटी इज देयर। अच्छा रुचि, फंक्शनेबिलिटी और वेयरेबिलिटी, लाइक मतलब एस्थेटिक भी रहे, ज्वेलरी सुंदर भी रहे और वो वेयरेबल भी हो, क्योंकि सुंदर दिखने का मतलब तो इंडिया में है कि अगर आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन रहे हैं वो ये कि वो वेयरेबल नहीं है। फिर तो एज यू सेड वो मिया जैसा कॉन्सेप्ट शायद इसीलिए आया है आपका, कि आपको वो डेली वेयर में छोटे से झुमकी मिल गए, अगर आपने वेस्टर्न पहना है तो कोई एक पतला सा ब्रेसलेट मिल गया आपको, लेकिन वो वेरेबल भी है और आप उसको 2-3 दिन तक आराम से, जब तक यू डोंट वांट टू चेंज कि आज मेरी मीटिंग है मुझे कुछ डिफरेंट पहनना है, तब तक यू कैन कंटिन्यू वेयरिंग इट। एंड इवन फॉर बिगर ज्वेलरी ऑल्सो, आप इतनी बड़ी ज्वेलरी किसी को नहीं दे सकते, लाइक अ सर्टेन इयररिंग्स आप 25 ग्राम से ज्यादा का इयररिंग नहीं दे सकते, दे कैन नॉट वेयर इन एनी वेडिंग फंक्शन बियॉन्ड 2-3 आवर्स, मतलब बियॉन्ड 1 hour ऑल्सो, मतलब वी डोंट वांट टू गिव यू समथिंग जो आप होल्ड ही ना कर सको, प्लस इट हैज टू look beautiful. So for that a lot of research goes, because every year we come up with certain new collections. आपको कस्टमर को नया भी देना है, ऐसा भी देना है कि उसके प्राइस ब्रैकेट में फिट हो पाए, और प्लस ऐसा भी देना है कि एटलीस्ट वो 1 जनरेशन टू सेकंड जनरेशन को पास ऑन हो पाए। वो ऐसा ना हो कि हमने ऐसा कुछ बना दिया जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए में तो चाहिए ही नहीं। एक्चुअली गॉन आर द डेज ना, पहले होता था ऐसा कि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट वाज इन्वेस्टमेंट था कि आप, और अभी भी आप देखिएगा बहुत फैमिलीज में तो कि केजीज में जहां पर गोल्ड का लेन देन हो रहा है शादियों में, वहां तो ये स्टेटस सिंबल है, वहां फिर वो वेयरेबिलिटी वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं रहता, क्योंकि मैं देखती हूँ इतना हैवी वो हो जाता है कि
दुल्हन जो है वो पास ऑन करने के लिए हाँ। भी आप ये सारी ज्वेलरी जो पहनते हो, जितना जैसे केरला में आप देखोगे तो पूरा फ्रॉम हियर टू हियर दे वेस्ट बेल्ट भी है, waist आपके belt is सर्टेन gold. टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। इवन ब्रेड में पीछे भी हाँ, वो लोग जड़ा भी गोल्ड का वो पहनते हैं लगाते हैं, पूरी yes, चोटी वाला हाँ, जड़ा हाँ। पूरा सब एवरीथिंग। तो वो आप चाहे अपने वेडिंग डे पे पहनो, लेकिन जब आप लेने जाते हो ना, तो ये पर्सपेक्टिव जरूर रहता है आपके दिमाग में कि क्या मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर पाऊंगी कि नहीं। तो इतना तो सारे पेरेंट्स के थॉट में या फिर ब्राइड टू बी में रहता है कि कल को मेरी डॉटर होगी तो कैन आई गिव द सेम जड़ा, मे बी वो किसी और तरीके से उसको यूज करे, लेकिन कैन आई पास। तो इवन फॉर नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी ऑल्सो, आप पोल्की की ज्वेलरी ले लो या फिर आप नवरत्न का सेट ले लो, तो मे बी द स्टाइलिंग कैन बी लिटिल स्टाइलाइज्ड, बट पीपल सी कि हम इसको पास ऑन कर सकते हैं कि नहीं। देयर हैज टू बी सम एस्थेटिक। तो वाइल दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी डिजाइन अ डिजाइन कैलेंडर, it takes at least some 3 to 4 months for us to research what is in the trend plus how to make a jewelry which can be passed on. So it has to be a mix of both. अच्छा रुचि ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, और पोल्की एंड कुंदन, तो कुंदन की तो रिसेल वैल्यू भी होती है, पोल्की की नहीं होती शायद। नहीं, there are देखिए, कुंदन is a setting. Okay. So in Kundan there are two types of jewelry. One is made with glass, which is absolutely a glass ka chip. The other type of jewelry is polki. Polki is diamond ke chips. Yeah. So उनका जो सेटिंग है, both are called कुंदन ज्वेलरी, क्योंकि कुंदन इज दैट आपका जो गोल्ड का 24 कैरेट का जो फॉइल है जिससे वो सेट करते हैं ग्लास का या पोल्की का चिप, उसको कुंदन का सेटिंग कहते हैं। The setting is same in both, whether it is glass filled or it is polki. अगर वो कुंदन की ज्वेलरी है तो वो सेटिंग को वो करने को कुंदन कहते हैं। आप पहले जमाने से सिर्फ पोल्की ही प्रोसेस ऑफ सेटिंग इज कुंदन। हाँ, पोल्की ज्वेलरी का जो सेटिंग हुआ करता था उसको कुंदन कहते हैं। कुंदन इज लाइक 22 कैरेट का फॉइल जो साइड में लगाते हैं, उसी जैसे आप बेजल सेट लेते हो डायमंड ज्वेलरी में, वैसी पोल्की का जो बेजल होता है जिसके अराउंड, जिससे वो दबाते हैं पोल्की को, सो दैट इज कुंदन। कुंदन इज दैट सेटिंग ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड जो आपकी फॉइल है। हाँ, नहीं, पुरानी आप कुंदन ज्वेलरी में देखेंगे तो वो लेयर्ड होती है, दबी होती है, मतलब तो वो ग्लास में भी वो दबी ट्रेंड होती नहीं है। नहीं, ग्लास में भी दबी होती है। अभी तो मैं देखती हूँ वो ऊपर से जैसे चिपका देते हैं, ऐसी भी होती है, वो ग्लास वाला कुंदन। हाँ, वो कुंदन, वो पोल्की वाला कुंदन नहीं है, वो दूसरे सेटिंग वाला कुंदन है जो कि मोस्टली इमिटेशन में यूज होता है। जो प्रेशियस ज्वेलरी में होता है, पहले जमाने से तो सिर्फ पोल्की आ रहा था। पोल्की का प्राइजेस, गोल्ड का और पोल्की का प्राइस मिला के इट यूज्ड टू बिकम सो मच, देन बहुत सालों पहले ही ग्लास भी शुरू हुआ कि हम सेटिंग साइड से पूरी गोल्ड देंगे, हम उसको पूरा कुंदन की तरह फॉइल से ही सेट करेंगे। बट जो पोल्की डायमंड की चिप है, विच इज लाइक एन अनइवन रॉ चिप ऑफ अ डायमंड, जब माइन से डायमंड निकलते हैं तो सारे डायमंड्स आर नॉट इन अ कंडीशन कि आप उनको पूरे फेसेस से शेप कर पाओ जब आप डायमंड की ज्वेलरी जैसे बनती है। लेकिन कुछ माइन से निकालने में कुछ डायमंड के चिप्स भी निकल आते हैं। सो दोस चिप्स आर यूज फॉर कुंदन ज्वेलरी। सो कुंदन ज्वेलरी इज मेड इन 2 फॉर्म्स। वन इज जब आपका प्योर डायमंड का चिप लग रहा है उसमें, एंड द सेकेंड वे इज जब आप सिर्फ ग्लास का आप चिप लगा रहे हो लेकिन साइड की सेटिंग आपकी गोल्ड की है। तो उससे प्राइस बहुत मैटर हो जाता है। आप आप कुंदन की ज्वेलरी को ग्लास में फिल करोगे तो आपका प्राइस बहुत लो हो जाएगा। आप जड़ाऊ, जयपुरी जड़ाऊ कुंदन की पोल्की के साथ ज्वेलरी लोगे तो प्राइस विल बिकम हायर। रुचि, ट्रेंड फोरकास्टिंग जैसे होता है ना कि कंपटीशन इतना है ज्वेलरी डिजाइन में, तो आपको पहले से एक फोरकास्ट भी करना पड़ेगा कि किस तरह की ज्वेलरी आएगी, और फिर वो टाइमलेस ना रहे, मतलब वो टाइमलेस रहे, आई में से कि बच्चे भी उसको आगे जाके, तो ये सब चीजें भी बहुत ध्यान रखनी होती होंगी। अब जैसे कोविड में एक नया ट्रेंड आ गया था, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्राइड्स, कि एक ब्राइड है जिसको छोटा गैदरिंग चाहिए, बिकॉज कोविड के बाद लोग, इवन कोविड खत्म होने के बाद उनका माइंडसेट वही रहा कि हम इतना स्पेंड क्यों करें, हमें अपने सिर्फ क्लोज निटेड लोगों को ही बुलाना है, क्योंकि दोज आर द पीपल जो मैटर करते हैं। बिकॉज लोगों ने ये समझ लिया था कि ऐसी अनफोर्सीन चीज जो कि किसी ने पहले नहीं देखी वो आ सकती है, तो वी हैव टू सेव द मनी फॉर एटलीस्ट समथिंग विच इज लाइक, उसका कोई नेगोशिएबल चीज ही नहीं। अगर कोविड जैसी चीज दोबारा आ जाती है तो पीपल वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। तो 2 टाइप्स ऑफ ब्राइड्स निकल के आई। वन वॉज कि जिनको
कम लोग चाहिए, लाइट ज्वेलरी चाहिए, लाइट वेयरेबल कपड़े चाहिए, चिकनकारी का लहंगा चाहिए, नॉट वेरी हैवी, जो छोटे से गैदरिंग में खुद भी लोगों के सामने जाके अपना फंक्शन एंजॉय कर पाए, लोगों को थैंक यू बोल पाए फॉर कमिंग इनटू द ज्वेलरी. सो दोज वर टिपिक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राइड्स. उनको लाइट वेयर कपड़े चाहिए, लाइट कलर्स में चाहिए, नॉट समथिंग कि हम अलग से नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने पेरेंट्स की ज्वेलरी प्रेफर करी, अगर ली भी तो लाइट वेट ली. अगर उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हमें बजट ज़्यादा है हमारा, हमें तुम्हें ज़्यादा देना है, तो दे वर प्रेफरिंग लेयर्स में ज्वेलरी ताकि हम उसको एटलीस्ट मल्टीपल टाइम्स तक पहन पाए. बट एट द सेम टाइम देयर वर अदर ब्राइड्स यू वांट टू, उनका कैसा माइंडसेट था कि लाइफ है या नहीं है, वी डोंट नो, वी विल वांट टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड आई वांट टू वेयर दैट रीगल लेग लहंगा एंड सिट ऑन द स्टेज एंड वांट टू बिकम द दैट लेडी ऑफ द डे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द बिग डे ऑफ द लाइफ. हमने तब ये ऑब्जर्व किया और तब हमने दैट टाइम आई वाज डूइंग अ कलेक्शन विद तरुण तेलियानी, मतलब उसका तब हमने शुरू किया था इन कोलैबोरेशन विद अ सेलिब्रिटी डिजाइनर. तब हमने ये चीज़ पूरे अपने ब्राइडल कलेक्शन में, जिसका अभी सेकेंड वर्जन अभी अभी आया ही है स्टोर्स में, तो तब हमने अपनी ब्राइड्स को सेग्रीगेट किया इनटू एक्चुअली 2 पार्ट्स. वन हु वाज वेयरिंग, जिनके में हमने सॉफ्ट पर्ल्स डाले, लाइटर वेट में बनाई, सॉफ्ट टोन के लहंगों के साथ कैसे जाएगी. द अदर साइड हमने पूरा उनका बनाया विच वॉज हैवी लुकिंग, बिग कलर्ड स्टोन, मोर ऑफ गोल्ड, बिकॉज अगर उन्होंने जरदोजी का लहंगा पहना है तो मोर ऑफ गोल्ड एंड वैसी ज्वेलरी ज़्यादा जाएगी. तो इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड what is there in the trend which will come. You have to study in advance, plus what is the need of an hour from the market, actual consumers. So at the same time you have to study both. मतलब आप अपनी ज्वेलरी कितनी भी ट्रेंडी बना दो और कितना भी फोकस कर दो कि आने वाले कलर, जैसे दिस ईयर द कलर पैंटोन कलर ऑफ द ईयर इज मोका मूस विच इज लिटिल ब्राउनिश टोन. तो वो एक इंग्लिश कलर है जो आपको बैग्स में, अपैरल में इस साल बहुत नजर आएगा. दैट इज अ कलर ऑफ द ईयर. बट सीइंग द इंडियन ज्वेलरी, वो मुझे देखना है कि मेरे कस्टमर्स के साथ, जो तनिष्क के कस्टमर्स हैं, उनके साथ कितना वो कलर एसोसिएट कर सकती हूँ मैं इतना स्टोर में वो कलर ना दे दूँ कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ना रहे. सो यू हैव टू सी बोथ, बिकॉज कस्टमर्स का डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लस ट्रेंड को फ्यूज करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रुचि, वैसे तो हम लोग ये बात कर ही रहे हैं कि फिर भी आप मुझे बताइए कि एक डिज़ाइन मैनेजर का डे कैसा होता है और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं प्री लॉन्च से लेके सप्लाई चेन तक जाने के प्रोसेस में, लॉन्च तक के, लॉन्च और फिर उसके बाद कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो it's a hectic process actually. So it starts with a lot of research because it's a big brand and all the major collections will be seen on hoardings. So all the sub brands or even the imitation jewelry brand look up to Tanishq की क्या उनका नया आने वाला है, so that they can do the same जिनको imitation में वो ज्वेलरी चाहिए होगी. एडवर्टाइजमेंट प्ले अ बिग पार्ट. तो उस एडवर्टाइजमेंट में भी आप मार्केटिंग टीम को कैसे कन्विंस कर रहे हो कि हमने कुछ नया दिया है डिज़ाइन की तरफ से, बिकॉज मार्केटिंग टीम इज ऑल्सो एवरीबडी इन वन ऑर्गेनाइजेशन, इवन डिज़ाइन टीम, मार्केटिंग टीम, मर्चेंडाइजिंग टीम हु कम्स अप की मार्केट में चल रहा है, इट इज़ देयर, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. कोई एक प्रोडक्ट का कलेक्शन या प्रोडक्ट, एक सिंपल प्रोडक्ट भी बनता है, नॉट इवन द एंटायर कलेक्शन, इवन फॉर वन सिंपल प्रोडक्ट द डिज़ाइन, मर्चेंडाइज, मार्केटिंग, एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर, क्योंकि वो एज अ ब्रांड तो तीनों ने रिप्रेजेंट किया है. सो वी कम अप कि ये थीम्स रखते हैं, इट हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड टू इंडियन हेरिटेज ऑल्सो, इट हैज़ टू बी इन लाइन विद ट्रेंड्स क्या चलने वाले, इट हैज़ टू बी कि तनिष्क क्या नया करने वाला है, जो हम इसलिए भी बहुत रिसर्च करते हैं कि जो अभी तक किसी और ब्रांड ने करा ही ना हो. वी डोंट वांट टू रिपीट कि कल को ये बोले कि ये वाली ब्रांड तो ये कर रही है, फिर आप इतना प्रीमियम चार्ज करके हमें क्यों दिखा रहे हो ये. तो so it's like it starts with research and then we start with our concepts and then we finally make certain pieces which, like if there are 100 concepts or maybe 500 concepts, we come out with some 50 designs उन concepts में से लेके which are actually
apt for the Indian market and which are new at the same time. So then we make sketching in collaboration with the merchandising team because they also do a lot of research from their end कि क्या price point चल रहा है, हजूरी लाल क्या कर रहा है, other brands क्या कर रहे हैं, हुआ Tanishq competitors in every city because Tanishq के साथ एक minus point ये है कि उनके competitors हर city में हैं, उनको हर city का एक challenge है. दिल्ली में they have certain different challenges, चेन्नई में है तो they have a different competition. In Hyderabad, all these major cities have a lot of money to buy, to spend on jewelry, but they have different local competitors also. Actually, Tanishq एक I must say इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है. नेशनल तो है ही इंडिया में तो ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेडिशनल ज्वेलरी है हर स्टेट में और तनिष्क ने हर जगह अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है. तो रुचि, अगर आपका कोई नया कलेक्शन आता है, जैसे लॉन्च हुआ नया कलेक्शन, तो आप कैसे मेजर करते हैं उसका सक्सेस हुआ आपका कलेक्शन? So that is very measurable ना, कितना सेल हुआ, कितना सेल हुआ सबसे पहले. तो then the design this store people calculate कि कितना सेल हुआ, फिर क्या पीसेस ज़्यादा सेल हुए, फिर उसके बाद जैसे हमने अभी हमने जैसे सेलिब्रिटी डिज़ाइनर मैंने बताया उनके साथ हमने 2 कलेक्शंस किए, TT1 एंड तरुण तेलियानी 1 एंड तरुण तेलियानी 2. तो 2 pieces were far more fashionable in one. But TT2 was more success because जब हमने उनके साथ किया तो it was more fashion, जो because he's a very known celebrity fashion designer. तो उनके silhouettes were very different, very stylish jewelry. They know how to display it well. हाँ, तो उसके बाद जब हमने उसको स्टोर पे उतारा, जब एक्चुअल में सेल गए तो लोगों ने, क्योंकि इतनी बड़ी ज्वेलरी अगर 5 लाख to 10 लाख की पीसेस की ज्वेलरी है तो पीपल आर ऑब्वियसली वेयरिंग इन देयर वेडिंग फंक्शंस, और अगर टू मच स्टाइलिश है तो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसको पहने किसके साथ. मतलब लहंगा हैज़ टू बी लाइक, हम किसी गाउन के साथ तो पहने नहीं वाले, इट हैज़ टू बी अ साड़ी और अ लहंगा, और गाउन है भी तो वो इंडियन टोन डाउन गाउन है, इट्स नॉट एन इंग्लिश गाउन. तो इवन नेकलाइंस आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. तो फिर हम लोगों ने मेजर किया कि कौन से प्रोडक्ट्स थे जो ज़्यादा सेल हुए, कौन से प्रोडक्ट्स थे जो थोड़े से रह गए. दे वर वेरी ब्यूटिफुल बट नॉट वेरी एग्जैक्टली नॉट टू इंक्लाइंड विद द तनिष्क कस्टमर्स. तो फिर जब हमने इवेल्युएट किया तो हमने जब 2 बनाया तो मेजर ऑफ द कलेक्शंस वर देयर जो इंडियन मार्केट को और इंडियन नेकलाइंस को, इंडियन अटायर को ज़्यादा सूट करने वाले पीसेस थे. इंडियन कलर टोन, कि हम उसमें जेम स्टोन्स कौन से कलर के लगा रहे हैं, बहुत इंग्लिश टोन तो नहीं हो रहा, बहुत पर्ल्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. पर्ल भी है तो साउथ में है लेकिन एक सर्टन रिस्ट्रिक्शन के साथ है. टू मच पर्ल ज्वेलरी डजंट सेल इन इंडिया. तो फिर हमने उसको जब TT2 में टोन डाउन किया एंड इट वेंट वेरी वेल बिकॉज हमने उनका थॉट प्रोसेस लिया इन टर्म्स ऑफ सिलुएट्स बट उसको फ्यूज किया विद तनिष्क के कस्टमर्स एंड देन वी मेड TT2 एंड इट्स डूइंग वेरी वेल. रुचि, किस तरह के चैलेंजेस आपके प्रोफेशन में फेस करने पड़ते हैं आपको? बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर, वो सब तो हैं ही, फैमिली वाले, उस पे भी मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा शेयर करें क्योंकि आपका मुझे लगता है टूरिंग जॉब है, तो कैसे मैनेज हो पाता है? Because of my support from my family only, because it is too much of travel for me. मतलब because it's a precious jewelry. We have कारीगर्स, Tanishq has कारीगर्स according to specialization. अगर कोई एक जड़ाऊ की ज्वेलरी बन रही है तो वी हैव कारीगर्स इन जयपुर बिकॉज वो नहीं आ पाएगी सिटिंग इन सम अदर प्लेस. सो वी हैव कारीगर्स इन जयपुर, वी हैव अहमदाबाद, वी हैव कैलकाटा में गोल्ड की इतनी स्पेशलाइजेशन है. डीप साउथ में साउथ जैसी ज्वेलरी बनती है जिनको टेम्पो सेटिंग और वैसी ज्वेलरी ही बनानी आती है. सो व्हेन यू गिव द डिजाइन टू अ सर्टन कारीगर, आपका कलेक्शन में अगर रिक्वायरमेंट है कि कुंदन पोल्की भी होना है एक सर्टन पार्ट, आपका गोल्ड भी होना है एक सर्टन पार्ट, तो यू डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द कारीगर्स. एंड व्हाट हैपेंस इज कि इट इज प्रेशियस ज्वेलरी, नोबडी वांट्स टू मेल्ट इट. तो जब कारीगर थोड़ी सी ज्वेलरी बना देता है सो दे कम अप कि मैम आप आके देख लो. आप आके देखोगे, आप इस प्रोसेस को अप्रूव करोगे एंड देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड. बिकॉज नहीं तो अगर आपने फोन पे या फिर ऐसी देख के करा, मेल पे देख के करा, तो वो इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा. तो फिर आपको मेल्ट करनी पड़ जाएगी कारीगर को, विच विल नॉट कम अकॉर्डिंग टू मी. तो बहुत सारी चीज़ें, इवन व्हाट्सएप वगैरह में भी अगर कोई इमेज भेजता है तो उसका प्रोपोर्शंस नहीं समझ आते, कितनी बड़ी बनानी है. अगर आपका हारम का एक सर्टन लेंथ है, आपका चोकर का एक सर्टन चौड़ाई है जो कि आपको फ़ोन पे नहीं समझ आ सकती. तो फिजिकल मेरा
इन्वॉल्वमेंट विद द कारीगर, सिटिंग डे एंड नाइट विद द कारीगर्स कि उन वो अपने कैसे हाथ चला रहे हैं, फिर मैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर रही हूँ ऑन द सेम वैक्स पीस। तो वो मेरा इन्वॉल्वमेंट अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स इन तनिष्क बहुत ज़्यादा हो गया है। आई मोस्टली सी डिज़ाइन एक छोटा पार्ट रह गया है। आई थिंक प्रोडक्शन हैज़ बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यू आर वर्किंग विद तनिष्क, It's been 19 उस years हिसाब for से me. रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। तो ट्रैवल तो बिना फैमिली सपोर्ट के हो ही नहीं सकता ना। हाउ कैन, मतलब माई डॉटर इज 14 नाउ, तो अभी तो शी हैज बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। व्हेन शी वाज अ बेबी ऑफ 14 months मेरा तो तभी भी ट्रैवल होता ही था, मतलब तभी भी, क्योंकि तब लोग कम थे तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज लिटिल डिवाइडेड। तब कम था, माई मैनेजर्स यूज्ड टू सी मोर ऑफ प्रोडक्शन, बट हमारा प्रोडक्शन के अलावा भी major part of traveling is production, but traveling to different cities to know about the trends. तो अभी जैसे लास्ट ईयर मेरा नेक्स्ट सवाल एक्चुअली यही था कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं जो सी ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग, बट इंडियन मार्केट में इतने ट्रेंड्स चेंज होते नहीं हैं। जैसे अभी भी वहाँ पे रूबी और एमरल्ड are the most likable precious stones. Diamond का market is growing up, but from last 2-3 years गोल्ड का जो खरीदने का, नॉट बाय चॉइस बट बाय, नॉट बाय लाइकिंग, बट वो इसलिए भी ज़्यादा हो गया है इंक्लिनेशन क्योंकि आफ्टर लैब ग्रोन डायमंड्स का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ट्रस्ट थोड़ा कम हुआ है। हमारा जो लोकल पब्लिक है दे हैव बिकम वेरी कंफ्यूज्ड। उनको पता नहीं चल पा रहा कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है वो एक्चुअल में डायमंड, नॉर्मल डायमंड से कितने डाउन है। तो मतलब पीपल हु हैव वंस फ्रॉम तनिष्क बॉट बिग सॉलिटेयर इयररिंग्स आज वही कंफ्यूज है कि मैं अगर किसी वेडिंग में अपने ये 10 लाख के इयररिंग्स पहन के जाऊंगी और लोग सोचेंगे कि मैंने तो एलबीडी पहना हुआ है, तो वो लोग सोचेंगे कि मैं मतलब, तो लोग डिलेमा में हैं। तो इस डिलेमा के होने से लोग ज्यादा गोल्ड, जो बड़ी ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे आप कितना भी ले लो प्रेशियस ज्वेलरी, एक साइड ऑफ आपका हमेशा दिमाग रहता है कितनी भी सुंदर डिजाइन हो या ज्वेलरी हो कि हमें इसको इन्वेस्ट भी करना है। मतलब हम कल को अगर हमें ये 10 लाख रुपए कहीं जरूरत पड़ जाए, ना ही पड़े, लेकिन एक दिमाग में रहता है कि ये हाँ है, इसमें 10 लाख रुपीस हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो इसलिए लोग ना अभी डायमंड मार्केट से बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। और ज्वेलरी में ये हमेशा रहेगा एक्चुअली कि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटे से आप 40,000 के इयररिंग्स भी खरीदने चाहते हो, सोशल स्टेटस, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें रहेंगी हमेशा प्रेशियस ज्वेलरी के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपका, चलो कोई नहीं, अगर 40 के में आपका थोड़ा मेकिंग वेकिंग करके कट भी जाता है, आपके जेमस्टोन्स अगर प्रेशियस नहीं है, सेमी प्रेशियस है, और वो तो भी आपको लगता है कि मेरे 40,000 में से 30,000 तो मेरे हैं ना कम से कम मतलब एटलीस्ट। तो वो चीज़ ना लोगों के दिमाग में रहती है, और डायमंड को लेके ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा लोगों को अभी। दो वी आर प्रमोटिंग, दो वी आर मेकिंग देम अवेयर कि व्हाट इज द डिफरेंस, बट वो चीज़ लोग नॉर्मल कस्टमर्स तक पहुंचने में बना रहा है, लैब ग्रोन में कर रहा है डील कर, हाँ, लेकिन मतलब अभी वी आर आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल कि कितना एक्सेप्टेबल है। मैंने अभी पीछे देखा तनिष्क लैब ग्रोन में नहीं था पहले। हाँ, नहीं तो उनको ये करना भी नहीं है, बिकॉज वी हैव लोड्स ऑफ डायमंड ज्वेलरी सिटिंग इन द स्टोर एंड वी वांट टू एक्चुअली फर्स्ट, लोग ऐसा ना समझ लें कि तनिष्क ने डायमंड तो बेचे, हमें क्या बेचा। सो एक्चुअली फर्स्ट तनिष्क इज अ वेरी कस्टमर फ्रेंडली कंपनी। तो पहले वी वांट टू प्रमोट एंड एजुकेट द कस्टमर कि कल को अगर हम आपको लैब ग्रोन डायमंड देते भी है ना, तो यू शुड नो कि ये लैब ग्रोन डायमंड है। और वो चीज इंडिया में ना ज्वेलरी मार्केट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मे बी अ पर्सन सिटिंग इन दिल्ली माइट अंडरस्टैंड, अ पर्सन सिटिंग इन करनाल वोंट अंडरस्टैंड। तो वी वांट टू मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस एंड देन कम इन अ बिग वे इफ वी विल डू दैट। तो वो ना अभी, और सबको पता है कि यहाँ तो कंफ्यूजन चल रहा है, हमें शादी तो आ गई है, हमें ज्वेलरी लेनी ही लेनी है, तो लेट्स डू सेफर साइड है कि कुंदन पोल्की या डायमंड ले लो, वो और या गोल्ड ले लो। सॉरी, दिस इज ट्रू कि इमिटेशन ज्वेलरी ने बहुत बड़ा थ्रेट तो दिया है रियल ज्वेलरी मार्केट को, डायमंड हो या गोल्ड हो। और हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, एक्चुअली आप तो शायद कर लें, हम जैसे लोग तो नहीं असेस कर पाते कि सच में उन्होंने रियल पहना हुआ है और अब ये लैब ग्रोन आ गया। हालांकि लैब ग्रोन आर द कंडीशंस आर आर्टिफिशियल, डायमंड तो रियल ही है, बस ये है कि वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बनाया जा रहा है, और इसीलिए उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो गई। जो चीज़ सालों के प्रोसेस से बन रही थी वो आप कम टाइम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके बना रहे हैं।
इसीलिए थोड़ा तो उसका वही प्राइस लोगों भी को कम अवेयर है करना तो, है। हाँ It's लोगों very को लेकिन तो अभी हम ये ऐसा कुछ नहीं एक्सेप्टेंस करना चाहते कि आपको पता ही ना और कल को आप करो कि हमको मालूम नहीं था और इतने का हमने खरीदा। तो वी वांट टू फर्स्ट मेक हिम कि जब जैसे पोल्की ज्वेलरी है, पीपल वर नॉट मच अवेयर कि पोल्की ज्वेलरी जो है और ग्लास कुंदन ज्वेलरी में दो पार्ट्स हैं और उसका क्या अवेयरनेस है कि वो हमें क्यों कम दाम में मिल रही है और पोल्की का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है। तो वी एट स्टोर लेवल पीपल मेक देम अंडरस्टैंड, वी मेक, हमारा काम है कि हम स्टोर वाले लोगों को पूरा अवेयर करें और उनका काम है कि वो लोकल, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग डायरेक्टली विद द कस्टमर्स, दे आर द वन हु आर डीलिंग विद द कस्टमर्स। तो हमने उनको जाकर हम स्टोर पे कोई भी चीज़ बताते हैं ना, लाइक फॉर टीटी कलेक्शन ऑल्सो वाई वी आर टेकिंग अ प्रीमियम बिकॉज इट वॉज अ सेलिब्रिटी डिजाइन कलेक्शन। नो, इट इज़ नॉट ओनली दैट, हमने वहाँ पर डायरेक्टली उनके जो लहंगों में एम्ब्रॉयडरी थी उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट किया इनटू ज्वेलरी। इट वाज सच अ बिग चैलेंज फॉर माई सेल्फ कि आप, क्योंकि थ्रेड को घुमाना एम्ब्रॉयडरी करने में सो इजी, बट उसी तरीके का लुक देना गोल्ड के थ्रेड से, इट वाज सो चैलेंजिंग। सो फर्स्ट टाइम ऐसे कस्टमर्स भी आए हैं आपके पास जिन्होंने कस्टमाइज कराई है ज्वेलरी? नहीं, ये कस्टमाइज या ये आप तो रिवा ब्रांड की रिवा बात में कर जो रहे हमने हैं? तनिष्क Okay. जो तरुण तहलियानी के साथ एक कलेक्शन दिया अच्छा, था। अच्छा। अब तरुण तहलियानी इज फेमस फॉर इट, अपने कपड़े, अपने लहंगे, अपने, बिकॉज ही इज अ फैशन डिजाइनर। तो हम उनका क्या दिखा सकते हैं? इट हैज ये टू बी अ coordination कोलैबोरेशन। आपने ऐसे दिखाया। हाँ, तो हमने Okay. कोलैबोरेशन कैसे दिखाया कि उनके लहंगों में जो कलर टोन्स होता है जनरली या तो वो डीपर रेड्स में जाते हैं या तो वो बिल्कुल ऑफ वाइट्स में जाते हैं, तो वो हमने कलर अपने स्टोन से दिखा दिया कि हमने जरदोजी के जो उनके लहंगे उसमें हमने रूबी रख लिया। लेकिन अब अगर हमने जरदोजी की एम्ब्रॉयडरी को कैसे दिखा रहे हैं, तो हमने जरदोजी की एम्ब्रॉयडरी इज लाइक जो गोल्ड की वायर्स होती है उससे पाइप से आप जरदोजी की एम्ब्रॉयडरी करते हो, बट उसको हमने गोल्ड में ट्रांसलेट किया विद अ गोल्ड पाइप। तो आई हैव पीसेस जिसमें हमने, अब जैसे आपकी सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी होती है, तो आपका सीक्वेंस इज अ फ्लैट गोल्ड का एक फ्लैट सीक्वेंस होता है ऐसे चपटा सा, उसको आपने 2-3 सीक्वेंस को साथ में रखा और आपने थ्रेड से उसको चला दिया, तो आपकी लहंगे में सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी हो गई। मैंने गोल्ड के चिप्स कटवाए विच इज कॉल्ड चंदक इन गोल्ड ज्वेलरी, वो रखे उन्होंने और वो गोल्ड के थ्रेड से उनको सिला। तो दैट्स हाउ वी ट्रांसलेटेड उनके जो एम्ब्रॉयडरी लहंगों का फील था इनटू ज्वेलरी। सो पूरा वो, अगर आप हमारा टीटी का कलेक्शन देखें तो पूरा का पूरा ट्रांसलेशन है। एक तो उनके कलर टोन्स का ट्रेंड इनटू, जैसे सॉफ्ट कलर्स में हमने पर्ल्स यूज कर लिए, हेवियर लहंगे जो है वो हमने प्रेशियस कलर स्टोन से कर लिए। बट अब अगर उनके जो रीगल लहंगे हैं उसमें सारी दजोजी की एम्ब्रॉयडरी है, जो उनके उधर के जो लाइटर एम्ब्रॉयडरी है उसमें चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी। अब चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी कैसे दिखाओगे? अब मैंने एकदम पर्ल का चादर बनवाया, मतलब पर्ल, छोटे छोटे पर्ल्स को धागों से पिरोया, गोल्ड से पिरोया, और आई हैव अ चटाई विच इज दिस बिग, और वो आपकी चटाई के ऊपर गोल्ड के फ्लावर्स लगे हुए और पूरी चटाई का वो सेट है। तो वो ट्रांसलेशन दिखाना कि वाई वी आर, अगर सेलिब्रिटी डिजाइनर एंड वी आर टेकिंग अ प्रीमियम फॉर दैट कलेक्शन, सो उसमें वो चीज़ दिखनी चाहिए कि हाउ यू हैव ट्रांसलेटेड इट इनटू ज्वेलरी। उनका जो फोटे है दैट इज 1:1 की, वो एम्ब्रॉयडरी किस टाइप की करते हैं, प्लस उनके सिलुएट्स जो साड़ी तरीके का बांधने का तरीका है, जो उनका लुंगी वाला, वो सब उन्हीं से स्टार्ट हुआ था। तो वो सारा सिलुएट प्लस जो एम्ब्रॉयडरी की फील आई, तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द कारीगर्स ऑल्सो, कि उनको जब मैंने दिखाया कि आपको ये जो एम्ब्रॉयडरी का टुकड़ा है, इसको आपको, ये रोज है, इसको आपको बिल्कुल उसमें प्रेशियस ज्वेलरी में ट्रांसलेट करना है। आई एम रियली अमेज्ड। मतलब आप ये देखिए फैशन कितना इवॉल्व हो गया है, खासतौर से इंडिया में ही अगर मैं कहूँ इतना इवॉल्व हो। पहले डिजाइनर्स ज्वेलरी की तरफ तो देखते ही नहीं थे। अब देखिए सब्यसाची अपना अलग कलेक्शन निकाल रहे हैं, मसाबा गुप्ता का मैं देख रही थी ज्वेलरी में आ गई है, शी इज कमिंग इनटू डायमंड्स। कमाल। तनिष्क कंपटीशन देखिए ना कितना बढ़ गया है। रुचि, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 5-10 सालों में वैसे तो दिख रहा है, इट्स ऑब्वियस कि बढ़ेगा ज्वेलरी ट्रेंड, इमिटेशन में भी और रियल ज्वेलरी में भी। तनिष्क ने बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स बना लिए हैं अपने ना, अलग अलग यूटिलिटी के हिसाब से। तो वो कौन कौन से ब्रांड्स हैं आपके? जैसे एक मिया है, मिया फॉर वर्किंग लेडीज है, वो भी हमारा कलेक्शन हुआ करता था, बट वो कलेक्शन लोगों को इतना पसंद आया कि अब मिया हमने सेपरेट ब्रांड बना दिया है फॉर वर्किंग वुमेन। एंड अब हमारा नया ब्रांड आ रहा है विच इज़ रिवा, विच इज़ ओनली फॉर ब्राइडल ज्वेलरी। उसका फर्स्ट स्टोर अभी ओपन होने वाला है साउथ एक्स में। सो कैरेट लेन इज ऑल्सो अंडर अ डायमंड।
Diamond and gold both. They have small jewelry. Yeah. It's like Mia, small jewelry for everyday wearing, but small. Gold भी है, diamond भी है, but everything is everyday types. अच्छा, इट्स अमेजिंग ना, एक तनिष्क ने इतने सारे मल्टीपल ब्रांड्स Brands. निकाल दिए. वेरी गुड. अभी तो Tanishq has become reached outside India also. We have many stores now. I think 20 plus stores in Middle East, and we have some 5 plus stores in America US, also. US. okay. Yeah. Ruchi, how many designers you have collaborated with Tanishq? Tanishq on time, off time, काफ़ी सारे celebrity designers के साथ just to give an impact with, because when we do a collaboration, we do a fashion show also, उनके लहंगे, because they have a certain why this I'm just telling you why this collaboration is important for us, because जैसे Tarun Tahiliani is very well known for his bridal apparel, bridal lehengas, even for people wear his saris and all for pre-wedding functions also, light chikankari ki saris. Abhi to chikankari ke lehenga were so much in last year. तो वो collaboration इसलिए भी important है कि a certain type of brides go to these fashion designers, and उन fashion designers को बहुत insight होता है कि brides को क्या चाहिए. अब अगर तनिष्क अब अगर कोई सब्यसाची अब अगर तरुण तहलियानी की कोई ब्राइड उनके पास जा रही है अपना लहंगा बनवाने के लिए, तो ही नोज कि कितनी टाइप की ब्राइड्स हो सकती हैं. एक ब्राइड है जिसको कुछ ज़्यादा हैवी नहीं पहनना, जिसको सिर्फ मे बी सम 10 पीपल चाहिए अपनी वेडिंग में, उसको टोन डाउन ज्वेलरी भी चाहिए. एक वेडिंग है जिसको 2000 लोग चाहिए अपनी शादी में. तो तभी से ये ट्रेंड हमने भी आइडेंटिफाई किया आफ्टर कोविड व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद तरुण तहलियानी कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राइड्स विच गो टू दीज टाइप्स ऑफ सेलिब्रिटी डिजाइनर्स टू डिस्कस देयर अटायर. और तभी से निकल, बिकॉज नो ज्वेलरी, यू कैन नॉट buy a jewelry unless and until you fix up your attire, what you have to wear in your wedding. तो कपड़े comes first and then the jewelry comes. तो क्या होता है कि these fashion designers give us insight about कि brides को क्या चाहिए. तो आपने तरुण तहलियानी के अलावा और कौन से डिजाइनर्स? अब हमने कोलैबोरेशन किया था विद फराह खान. दो शी इज अ फैशन, शी इज आल्सो अ ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान. ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान संजय खान की बेटी है शायद ना. सो शी इज आल्सो अ ज्वेलरी डिजाइनर. बट हमने उनसे क्यों कोलैबोरेशन किया? बिकॉज शी हैज अ डिफरेंट माइंडसेट. शी प्लेज विद बिग जेमस्टोन्स. उनका ज्वेलरी का अगर आप देखोगे ना तो शी मेक्स डायमंड ज्वेलरी प्लस विद वेरी ब्यूटिफुल कलर्ड स्टोन, बिग एमरल्ड, बिग रूबीज. उनका जो फोटे है ना वो पूरा बिग एंड ब्यूटिफुल कलर्ड स्टोन्स हैं. तो एंड तनिष्क में वो अवेयरनेस पहुंचाना और उस टाइप की ज्वेलरी लाना, बिकॉज वी आर ऑल्सो जगलिंग विद आवर ओन इंटरनल कलेक्शंस. तो उनके एक सेट ऑफ कस्टमर्स हैं. सो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन से कस्टमर्स हैं हु आर लाइकिंग दिस बिग जेमस्टोन्स. इतना इंडिया में द ज्वेलरी मार्केट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. एक सेट ऑफ पीपल को ये भी पसंद है, दूसरे सेट ऑफ पीपल को ये भी पसंद है. इट्स नॉट अमेरिका विच इज़ वेरी क्लीन प्लेन कि एक ही तरीके का चलेगा. तो कई लोगों को कैलकटा टाइप लाइट ज्वेलरी चाहिए, कई लोगों को हैवी कॉम्प्लेक्स छोटी चाहिए मगर कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसमें वर्कमैनशिप बहुत ज़्यादा आ रही है. तो देन वी डिड अ कोलैबोरेशन विद फराह खान. और अभी लास्ट ईयर वी डिड अ कोलैबोरेशन विद फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा. अब राहुल मिश्रा इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम तरुण तहलियानी, बिकॉज उनके जो अटायर्स हैं मोर ग्लिटरी, टू मच ऑफ सीक्वेंस वर्क इन द लहंगा. तो उनके साथ हमने जब पेरिस फैशन वीक किया था तो हमने अपने डायमंड ज्वेलरी का उनके साथ कोलैबोरेशन किया था. So on and off, we do a collaboration. We do collaborations with designers. रुचि, आजकल जो सबसे ज़्यादा बात होती है किसी भी ब्रांड को जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है आपके सस्टेनेबल गोल्स, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो तनिष्क कैसे इन गोल्स को अचीव करता है? क्या कंसर्न्स हैं आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए? A lot of initiative has already been taken care from our brand. Okay. What we do is कि specifically जो gold wastage की तरफ जाने लगता है, a factory which is located in Hosur, which is a small town between Bangalore and Tamil Nadu. It's on. So वहाँ पे हमारी जो पहले तो gold किस तरीके से आप रिटेन कर सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ इन एंड आउट हैपेंस. तो और पुराना जो गोल्ड मेल्ट हुआ है, जैसे बहुत सारी ज्वेलरी नहीं सेल हो पा रही है बहुत टाइम से, कुछ पीसेस हैं जो नहीं हुए, तो वी ट्राई टू फर्स्ट मेक ज्वेलरी आउट ऑफ दैट.
Okay. So that we can at least, instead of making anything new from a new gold, we first try to retain what can happen from our old gold plus old stones also. What when something comes back, कि अगर कुछ time तक वो नहीं बिक पा रहा and the trend says that it will not sell in the market, it again come back to the factory. The factory people dismantled everything, keep on the diamond निकाल दिए, gemstones निकाल दिए, and then we rethink. गोल्ड तो आप मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में ले आओगे. वी एक्चुअली मेक सर्टन टाइम्स, वी मेक कलेक्शंस आउट ऑफ दोज डायमंड्स एंड कलर स्टोन जो ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं. सो वी अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव हैज बीन ऑलरेडी टेकन बिकॉज नोबडी आफ्टर दिस, एवरीबडी स्केयर्ड ऑफ दिस एनवायरनमेंट इज गोइंग. मतलब इट्स फॉर अस ओनली. इट शुड बी. It's our responsibility. It's our responsibility. It's the high Paper time. usage and machinery usage, electricity usage, everything, solar. These काफी कुछ बिगाड़ चुके हैं हम लोग पहले ही actually. So whatever happens from our side, from a jewelry brand, we all are taking good care of it. रुचि, आपका favorite piece of jewelry कौन सा है आपके ब्रांड से? It's been so many things I'm designing and all, but as a product, if you ask me, I like wearing rings, finger rings, but otherwise, every piece you design, you become a little biased of what you make. And actually, I have started not wearing too much jewelry. Somehow क्या होता है ना कि when you travel so much and आपको पूरे दिन भर ना jewelry से deal करना पड़ता है, because I सर्टन स्टेजेस में भी आपका ईयरिंग ठीक से फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उतारते बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग विद दैट इंटेंट, अगर मार्केट सर्वे करने जा रहे हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज इफ यू आर गोइंग फॉर दिस डेवलपमेंट ऑफ ज्वेलरी विद आवर कारीगर्स, तो आपको बिना ज्वेलरी के जाना पड़ता है, सो दैट आपको बहुत चीजें पहन के ट्राई करनी पड़ती है, आप कहीं उतार देते हो. सो वो होते आई बिकम अ नॉन ज्वेलरी पर्सन एक्चुअली. आई डोंट, पीपल एट माई होम सेज कि रुचि यू डिजाइन एंड मेक अदर people wear jewelry and make them beautiful. We hardly see you in jewelry. So that is the reason. वो उतारते though I have loads of jewelry because I travel so much. तो कहीं कुछ अच्छा लगा ले लिया, कभी internationally गए, I am very fond of silver jewelry. So कुछ अच्छा लगा ले लिया and it's there in my bags. Once I was opening that bag कि आज ये पहनते हैं, suddenly कोई trip आ गया and I again had to put it down and I was telling my daughter, this is my precious bag, you keep it. Maybe when you will go to college, please remember you can utilize if you will not taking the same field maybe. राइट. जो यंगस्टर्स आना चाहते हैं ज्वेलरी में, उनके लिए कुछ सर्टन पीसेस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाहें उन यंगस्टर्स को, किस तरह की तैयारी करें वो अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और कैसा है फ्यूचर, और कैसे डेफिनेटली पैसा तो अच्छा होगा इस फील्ड में क्योंकि जिस तरह से ज्वेलरी मार्केट बढ़ रहा है डे बाय डे. तो प्लीज़ गिव सम इनसाइट्स. सी फर्स्ट एडवाइस इज कि इफ़ यू आर, सी हम जैसे लोग जिनको ड्राइंग, पेंटिंग्स और डिज़ाइन से इंटरेस्ट है, वो एक सर्टन लेवल के बाद नहीं आ सकता. यू कांट थिंक आफ्टर 12th कि मुझे ज्वेलरी डिज़ाइनर बनना है. समवेयर इट इज़ डीप डाउन इन क्लास 3rd और 4th कि आपको पेंटिंग्स का बहुत इंटरेस्ट है, कलर्स में बहुत इंटरेस्ट है, यू हैव दैट आई ऑफ ऑलवेज स्केचिंग अपनी नोटबुक के पीछे कुछ, या फिर अगर आप घर भी जा रहे हो, माई फेवरेट पास टाइम बिकॉज माई होम वॉज वेरी फार फ्रॉम माई स्कूल, तो माई फेवरेट पास टाइम यूज टू बी कि मैं कुछ स्केचिंग कर लेती हूँ, कुछ स्क्रॉल कर लेती हूँ. ड्राइंग पीरियड यूज टू बी माई फेवरेट पीरियड. एंड मेरे बहुत सारे, आई एम फ्रॉम अ बिग फैमिली, सो मेरे बहुत सारे कजन्स को रात को 12 बजे याद आता था कि अरे साइंस का डायग्राम नहीं बनाया, देखिए रुचि जगी है कि नहीं जगी है. तो वो चीज़ ना आपको बहुत बेसिक लेवल से पता चल जाता है कि मेरा किस चीज़ पे इंक्लिनेशन है. वो आपको, आप एक 10th के बाद मेडिकल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, 12th के बाद आप MBA कर सकते हो, लेकिन ये जो डिज़ाइन वाली फील्ड है ना, आई थिंक वो आपका एक सर्टेन एज के बाद और सर्टेन क्लास के बाद नहीं आता. वो वही लोग करते हैं आई थिंक जो हमेशा पेन्स और पेंटिंग से बचपन से ही सराउंडेड रहते हैं. आर्टिस्ट होना जरूरी है. हाँ, मतलब वो आपका बेसिक इंक्लिनेशन है, नहीं तो आप बोर हो जाओगे अपने. अगर आपने जबरदस्ती किसी के कहने से कर लिया कि ये ट्रेंड में आ रहा है और कर लो, देन यू कांट सर्वाइव. आज की डेट में भी मेरे पास इतना काम रहता है ना, माई डॉटर इज इन 9th स्टैंडर्ड, आई हैव ट्रैवल सो मच, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जब मैं कारीगर के साथ बैठती हूँ ना तो मैं सब भूल जाती हूँ बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क. माई डॉटर वॉज 6 months old when I had to resume work, and actually in those 6 months I was
so much missing my work कि मैं ऑफिस कब जाऊंगी. मतलब I was in my hometown when I delivered her and I so wanted to actually go back to Bangalore कि मेरे को पता था कि मेरे घर से मेरा ऑफिस थोड़ा ही पास है, तो even I can carry my daughter and go to my studio, my design studio in my office. तो मेरे को बहुत फैसिनेशन था शुरू से. तो जब तक आप इस फील्ड के लिए पैशनेट नहीं हो सकते ना, तो आप बहुत लॉन्ग रन तक काम नहीं कर पाओगे. तो बचपन से एक तो इंक्लिनेशन होना ज़रूरी है, दूसरा कि गिव अप मत करिए, क्योंकि ये इस फील्ड में ना आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. बिकॉज इट्स नॉट एन आईटी फील्ड कि आपके पास बहुत सारी कंपनीज है काम करने के लिए. द कंपटीशन, इफ़ यू रियली वांट टू वर्क इन अ एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, आपको थोड़े छोटे जूलर्स मिल जाएंगे विच आर फैमिली ओन जूलर्स, विच माइट टेक ज्वेलरी डिजाइनर्स और माइट नॉट टेक. they can take there are ready catalogs available in the market, they can take. But if you want to work in an organization, bigger companies जो कॉर्पोरेट की तरह रन करते हैं बिल्कुल, तो आपको थोड़ा इसमें काफ़ी कंपटीशन है. सो थिंक एट अ सर्टन लेवल इन स्कूल डेज और मे बी बिफोर 10th कि हाँ मुझे ये करना ही करना है. एंड अगर आपको लग रहा है कि यू हैव टू गिव सर्टन एग्जाम फॉर NID और NIFT और एनी अदर गुड इंस्टीट्यूशन फॉर गेटिंग इनटू इट, टेक ट्यूशंस, टेक क्लासेस, और या तो आप क्वेश्चन बैंक्स पढ़ना शुरू कर दो. मतलब गो विथ फुल स्टडी. डोंट टेक इट कि मैं कर लूंगी ऐसे ही हो जाएगा, बिकॉज द कंपटीशन इन दिस फील्ड इज वेरी यंगस्टर फील्ड्स के ये डिजाइनिंग वाली फील्ड है, तो इसमें ज्यादा पढ़ना और तैयारी की जरूरत नहीं होगी. जबकि आजकल आप, मुझे नहीं लगता कोई भी फील्ड ऐसा है जहां आपको प्रिपेयर नहीं होना. मेरा तो एक ही कहना है लोगों को कि नो पेन नो गेन. दिस इज ट्रू. आपको कोई भी फील्ड में, आज आई हैव स्पेंट 19 years in Tanish, but today also the team which I'm collaborating the most is marketing and merchandising. Every day or every year they want something new from me. इतना टाइम स्पेंड करने के लिए यू हैव टू क्रिएट योर ओन पोजिशन कि रुचि ने क्या इस बार दिवाली या रिवा में क्या नया दिया. सो एवरी स्टेज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. इधर यू आर अ न्यू कमर, जब आप एक इंटर्न लेवल पे होते हो, लाइक वी टेक इंटर्न्स फ्रॉम NIFT and NID every year in their last phase of their course. So this is the time when so many interns are there in office from January to April. This is the last semester. तो अब इंटर्न लेवल पे भी कुछ इंटर्न ये सोच लेते हैं तनिष्क में हमारा इंटर्नशिप लग गया, हमारा काम हो गया, बस शायद हो गया. लेकिन उनको, कुछ इंटर्न्स को ये पता नहीं, 4 इंटर्न्स दिल्ली में हैं, 5 इंटर्न्स बैंगलोर में हैं, 4 इंटर्न्स कैलकाटा में हैं. तनिष्क इज अ बिग कंपनी, हम शायद 2 ही इंटर्न्स को एब्जॉर्ब कर पाए, पोजीशंस हर साल नहीं होती. एट देयर इंटर्न लेवल ऑल्सो दे वर्क लाइक एम्प्लॉइज, रात भर जगेंगे. इफ वी आर वर्किंग, अगर कोई कलेक्शन का डिलीवरी है एंड द इंटायर एवरी मेंबर इन द डिजाइन स्टूडियो हु इज एन एम्प्लॉय, अगर वो जितना जगल कर रहे हैं उतना ही जगल वो इंटर्न भी करता है, देन वी टेक कि उसको एट टाइम्स ऑफ जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो वो एंजाइटी भी नहीं ले रहा, वो एक सॉफ्ट माइंड से काम कर रहा है कि दिख रहा है कि वो पैशनेट है इसलिए काम कर रहा है, और वो एट द सेम टाइम वो कुछ नया भी ला रहा है. मतलब देर आर सर्टन थिंग्स जो हम बेसिक लेवल से ही, मतलब उसका क्रिएटिव वहीं से चेक हो जाता है. हम सारे जो हमारी तनिष्क में जो इतना हायरार्की बनता है वो एक इंटर्न लेवल से ही बन जाता है. हम हार्डली बीच में कभी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उस समय आपको 10 में से ये तो पता चली जाता है कि ये 2-4 इंटर्न्स हैं हु आर वेरी क्रिएटिव, वेरी गुड एट वे वर्क, बट यू हैव टू ऑल्सो सी कि वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं. अब लास्ट ईयर देयर वाज एन इंटर्न हु वाज वेरी गुड विद हर वर्क, लेकिन उसको अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा काम दे दी, हमने ये भी बता दिया था कि एट टाइम्स ज़्यादा काम होगा, एट टाइम्स 4-5 दिन यू कैन आराम से इन योर ओन वर्ल्ड, हम वो भी टाइम देते हैं आपको, बट जब काम है तो है. तो शी यूज टू फील वेरी एंजाइटी. मैम मुझे एंजाइटी हो रही है, बच्चे टैबलेट्स खा रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली मतलब 12 पास कर, अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं, एंड तो फिर हमें लगा कि नहीं, हम किसी की इतना वो नहीं कर सकते कि इफ दैट पर्सन इज नॉट मेंट टू टेक, मे बी दैट पर्सन कैन जॉइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन हु विल नॉट गिव सो मच ऑफ लोड टू देम. बट तनिष्क बीइंग सच अ बिग ब्रांड, हाँ यहाँ काम होता है तो बहुत होता है, और नहीं होता तो वी गिव दैट बैलेंस ऑल्सो. इट्स नॉट जस्ट तनिष्क, एक्चुअली ये यंगस्टर्स को समझना होगा दैट इन देयर इनिशियल ईयर्स उन्हें बिल्कुल कमर कस के रहना होगा और तैयार रहना होगा बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए. लेकिन आजकल की जनरेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन वाली जनरेशन, दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा. अगर बहुत ज़्यादा काम आया है तो उसके लिए भी तैयार रहना है, लेकिन काम से घबराना नहीं है कि आप अपनी तबीयत ही खराब कर रहे हो. यू हैव टू टेक इट, प्रेशर नहीं लेना कि हम आपको उतना ही काम दे रहे हैं जितना आपके लिए
आपके करने के लिए है। अभी क्या हो गया जनरेशन को कि उनको कोई प्रेशर नहीं चाहिए, Pressure उनको कुछ भी tackle मत नहीं करना बोलो। आता बच्चों को actually। उनको लगता है कि हमें सब पता है, हमें आप कुछ मत बोलो। तो वो ना बैलेंस होना, मतलब काम, 2 एम्प्लॉइज हैं, 2 इंटर्न्स एट द सेम लेवल बहुत मेहनत कर रहे और हैं। रुचि ये सिर्फ तनिष्क की बात नहीं, या ज्वेलरी डिजाइनिंग वाले फील्ड की बात नहीं, ये सभी फील्ड्स की बात है। और In खासतौर से इनिशियल लेवल पे जब आप एज अ, बहुत सारे बच्चों का तो ये कहना होता है कि इंटर्नशिप पे, मैं भी देखती हूँ, जैसे मेरे बच्चों ने भी, जैसे बेटी ने इंटर्नशिप की, दे डोंट पे एनीथिंग टू द इंटर्न्स। तो इंटर्न तो एक तरह से फ्री में काम करता है, लेकिन यंगस्टर हैज टू बी रेडी। तो वही है कि आपको काम भी बहुत करना है, बट आपको ना वो काम एक सर्टन Mindset के साथ करना है। फिजिकल प्रेशर तो आपको होगा, लेकिन मेंटली आप उसको उतना, क्योंकि मेंटल प्रेशर अगर आपने ले लिया ना तो फिर आप अपना फिजिकल काम खराब कर देते हो। तो इट हैज टू बी लिटिल बैलेंस। काम बहुत होगा इंटर्न लेवल पे, क्या हर लेवल पे काम होता है? मेरे लेवल पे भी जो काम है, आप इतना ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो वो हर लेवल पे आपको बहुत काम होगा, बट आपको अपने मेंटली अपने दिमाग को हमेशा बताना है कि नहीं, ये काम मैं करना चाहती थी, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। तो 2 चीज़ों का वो जो बैलेंस होता है ना, फिजिकल और मेंटल को बैलेंस करके चलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं बहुत कम देख रही हूँ जो बच्चे आ रहे हैं। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल दें यंगस्टर्स के, कोई शॉर्टकट है? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और आपके नहीं, हमारे लेवल के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं, और है ये सभी के shortcut। लिए, आप कुछ भी करिए, बिल्कुल। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर आपको अपना पोजीशन सरवाइव करना है आज की डेट में, have किसी to भी prove लेवल पे, yourself। इवन फ्रॉम अ सीईओ टू एन इंटर्न लेवल, Definitely। यू हैव टू बी एट द, लाइक यू हैव टू बी देयर, कि अगर आपसे आपकी फील्ड के बारे में कुछ पूछ लिया जाए, यू हैव टू बी फ्रॉम ए टू जेड, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कहाँ से आया, क्या ट्रेंड है, क्या, यू हैव टू बी देयर। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। तो रुचि, बहुत सारी बातें कर ली हमने। अभी क्या आप कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम बता सकती हैं हमारे ऑडियंस को? Lift and NID are the 2 very good ones. Okay. And then now there are institutes in Delhi, like so many in universities have also started with design course, like IIT also has design course, Amity University also has design course. But हमारे टाइम में these are the ones जो hardcore, because our is not anything related to टेक्नोलॉजी टू मच। लाइक आपने अगर आईटी से किया है तो यू हैव टू गो टू अ सर्टन फील्ड, बट हमारे क्या है कि द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइक यू डिजाइन बैग्स, यू डिजाइन ज्वेलरी, यू डिजाइन फुटवेयर, सो देयर दीज आर द इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको हार्डकोर प्रोडक्ट डिजाइनर्स मिलते हैं। सो वी फ्रॉम अस टू टिल नाउ, फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग इंटर्न्स इज NID and NIFT only. So but one thing I really want to tell the next generation, क्योंकि ये भी मैंने भी ना ये कुछ लोगों को ऑब्जर्व करके ही ये मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि इवन इफ यू आर कमिंग टू अ प्रोडक्ट डिजाइन फील्ड, आपने अगर अपना बेसिक इंजीनियरिंग करा हो एंड देन यू डू डिजाइन, इट्स अ वेरी गुड combination, because one of the interns she came to us and she was from an NID institute, a product design की post graduation की student थी, and she first completed her mechanical engineering. तो उसका जो चीज़ों को देखने का नजरिया था, that was completely out of the box. जो वो टेक्निकलिटीज देख लेती थी, मल्टी-डायमेंशनल विजन एंड एवरीथिंग ना, वो और मतलब वो फंक्शनैलिटी बहुत देख लेती थी। मतलब आपका 2D और 3D फिगर तो हम शायद जो आपने टेम्पल ज्वेलरी पे डिजाइनिंग किया तो आप फिर भी देख लोगे, डिजाइन पर्सपेक्टिव है कि लोगों को शायद सीधा दिखता ही नहीं है, हमें सारी चीजें पर्सपेक्टिव में ही दिखती हैं। लेकिन अगर अगर आपके ये इंजीनियरिंग लेवल वाली चीजें भी क्लियर है ना, तो आप आजकल सबको मल्टी फंक्शनैलिटी ज्वेलरी चाहिए। आपने ब्रेसलेट पहना, उसमें अलार्म भी बजना चाहिए। आप अगर ऐसी चीज में फंस गए हो जहाँ पे रात को आपको 8 बज गए, स्क्वेरी प्लेस, तो पीपल वांट टू ब्रिंग एन अलार्म कि कोई घर वाला सुन ले कि मेरी ज्वेलरी में से कुछ ऐसा है कि आई एम इन नॉट अ सेफर प्लेस। तो ऐसी भी ज्वेलरी आ रही है। सो दीज पीपल थिंक अ लॉट लाइक दैट। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, और एक्सपेरिमेंटल होना भी जरूरी है। exactly. You have to be. Okay, Ruchi, thank you so much for this lovely conversation and my pleasure. So many insights. And I'm very sure कि जो भी यंगस्टर्स जाना चाहते हैं ज्वेलरी डिजाइनिंग में, बहुत फ्रूटफुल सेशन हमारा आज का ये होगा। मुझे भी बहुत सारे इंसाइट्स मिली हैं इनफैक्ट। थैंक यू सो मच रुचि। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।